وہ لیڈر ہے، دشمنی ہے، اور وہ جس کا دشمن ہے اس کو تو اپنے دانتوں تلے رکھ کے پیسنا چاہتا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں اس کو اپنے دانتوں تلے رکھ کے چبا ڈالوں، اس کی نسل تک کو پیس ڈالوں. احتناق سے جو لفظ ہے اس کے مطابق احتناق گھٹی کو کہتے ہیں، جس میں کھجور کو دانتوں تلے رکھ کے پیسا جاتا ہے. تو ابلیس چاہتا ہے کہ جیسے کھجور کو داڑوں میں رکھ کے پیسا جاتا ہے نا، ایسے نسل کو پیس دو، نسل انسانی. یہ دشمنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ لائف اسٹائل بن گیا نا. آپ لوگوں میں سے کون موبائل کے بغیر زندگی بسر کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ مشکل ہے. ریالٹی میں دیکھیں بہت مشکل ہے. ہاں، جنہوں نے موبائل یوز ہی نہیں کیا ان کے لیے تو ایک اور بات ہے کہ جو ابھی پابندی میں وقت گزار رہے ہیں، یعنی چھوٹے بچے جو ہیں جن کو ابھی موبائل نیا ملا، ان کے معاملات فرق ہے. لیکن اصلاً سب کے لیے بے حد مشکل ہو گیا، اور اسی کے راستے انسان پلے ہو رہا ہے. انسان کی سوچ بدلی جا رہی، انسان کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا گیا. تو یہ دشمنی کا آغاز ہے جو رب العزت نے بتایا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا واستکبر وکان من الکافرین. سیدنا قتادہ فرماتے سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا. اللہ تعالی اور آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی باہر آ گئی اور اس کا کفر اور تکبر ظاہر ہو گیا. کوئی مقام ہوتا ہے نا جب اندر کی برائی ظاہر ہو جاتی، دبی رہتی ہے، لیکن کسی مقام پر انسان کے اندر حسد ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ابلیس کا بھی حسد ظاہر ہو گیا، تکبر ہے ظاہر ہو جاتا ہے. رب العزت نے فرمایا سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا. جنوں میں سے ہونے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا، فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، مگر تکبر نے اتنے عظیم لوگوں کی صحبت سے آنن فانن محروم کر دیا. اندر کی برائی دور نہیں ہوتی تو صحبت کوئی فائدہ نہیں دیتی. جب تک اندر برائی رہے گی، آپ باہر سے نمازی بنے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، یہ ساری چیزیں مددگار تب ہوتی ہیں جب اندر اثر ہونا شروع. اور اگر دل بدگمانیوں سے بھرا ہے، حسد سے بھرا ہے، اگر دل دشمنی سے بھرا ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے، تو پھر نیکی اثر انداز نہیں ہوتی. انسان کا وہ تکبر اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے جیسے ابلیس کا ہوا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان میں تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور اس سے بھی پہلے یہ بات کہ تکبر کہتے کسے ہیں؟ اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں. اور انسان میں تکبر تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. ہمارے ہاں تو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے فرائیڈ کی تھیوری، سیلف اسٹیم، عزت نفس کو کہتے ہیں تکبر کا چھپا ہوا روپ ہے. ریلی کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، عزت کا احساس اسے گناہ پر جما دیتا. سیلف اسٹیم اپنی ذات کی بڑائی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو معزز بنایا ہے، کسی کا حق نہیں کہ کوئی دوسرے کی انسلٹ کرتا رہے، اس کی توہین کرتا رہے. لیکن میں آپ کو ایک ایسے منظر میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی توہین ہو رہی ہے.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कोई शख्स गालियां निकाल रहा है, इस कदर बुरा भला कह रहा है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। मंजर है ना कि एक गालियां दे रहा है और दूसरा खामोश है, बर्दाश्त है। फिर ऐसा हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दे दिया, तो आप उठ खड़े हुए, बाहर चले गए, निकल गए वहां से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को एहसास हुआ मुझसे गलती हो गई। आपके पास गए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, जब तक मुझे गालियां दी जा रही थी आप मुस्कुराते रहे, और जिस वक्त मैंने जवाब दिया तो आप उठ के बाहर आ गए। आपने फरमाया, जब आपको गालियां दी जा रही थी तो अल्लाह ताला का फरिश्ता आपकी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब आपने जवाब दिया तो फरिश्ते चले गए, और इब्लीस तो ज़ाहिर वहां मौजूद ही था। तो जब फरिश्ते चले गए तो मेरे वहां रहने का कोई जवाब नहीं था। इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंसान ने खुद अपनी इज्जत का दिफा करना है तो ही दिफा होना। दुनिया में हर इंसान को अपनी इज्जत के दिफा के लिए उठा खड़ा किया गया, उसमें कोई शक नहीं, कहीं दिफा करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मली आम हालात में हर कोई अपना अपना झंडा लेके उठ खड़ा हुआ है, तो टकराव के सिवा सोसाइटी में क्या होगा? आप कभी सड़क पे निकलते हैं तो आपको पता चलता है ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं, लोग गाड़ियों में एक दूसरे के पीछे दूर तक, मीलों तक ट्रैफिक ब्लॉक है। सबको पता है कि मेरे आगे वाली गाड़ी इसलिए नहीं जा सकती कि उसके आगे वाली, वो इसलिए नहीं जा सकता कि उसके आगे वाली गाड़ी। नॉर्मली संडे से ऐसा होता है कि लाहौर में जब आप एंटर होना चाहते हैं तो मीलों दूर तक आपको इंतजार करना पड़ता है मोटरवे पे कि आप कैसे एंटर हो। जाहिर है बहुत बड़ी तादाद अंदर एंटर होना चाहती है, और इसी तरह से नॉर्मली वीकेंड जब शुरू होता है तो बाहर जाने वालों की एक बड़ी तादाद होती है, तब भी बहुत रश हो जाता है। और लाहौर के अंदर भी जब स्कूल्स ऑफ होते हैं उस टाइम पे, और ऑफिसेज जब ऑफ होते हैं तब बहुत रश होता है। आप देखिए कि पीछे एक शख्स है, वो कहता है कि आगे वाला जाता क्यों नहीं, उससे हारन बजाने शुरू कर दिए, ऐसा हाथ रखा है, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। गुस्सा है, बढ़ता चला जा रहा है, क्या हो गया है, क्यों रास्ता नहीं मिलता। यानी रास्ता इसलिए नहीं मिलता कि ट्रैफिक ज्यादा है, और आगे बार बार जब सिग्नल बंद हो जाता है तो आपको खड़े होना है, और फिर जब गाड़ियां ज्यादा हो गई सड़कों पे और सड़कें तंग है तो रश तो होगा। लेकिन लोग क्या करें, वो इतना भूल चुके हैं अपनी जात की बड़ाई के एहसास में कि सब कुछ उन्हें बुरा लगता है, और वो एक दूसरे पे फटने लगते हैं। और इशारा जब खुलता है, ग्रीन सिग्नल होता है ना, उस वक्त पे लोग एक दूसरे के साथ ऐसा मामला करते हैं, लगता है कुछ कर डालेंगे। और खासतौर पर आप खास एरियाज में अगर देखें, जैसे डिफेंस में अगर इशारा बंद होता है, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ठीक भी जा रहे हैं तो कोई आपके साथ गाड़ी टक्कर मारता हुआ चला जाता है, और गुस्सा करते हुए कि क्यों ऐसा, और जोर से हॉर्न बजाते हुए। बॉम्ब है ना, तकब्बुर से भरे हुए लोग माजरत के साथ। अपनी जात की बड़ाई का एहसास इंसान को पूरा इब्लीस ही बना देता है। इसी तरह तकब्बुर पैदा होता है। एक और बात भी है, आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वहां से देखें कौन सा काम है जिसको करना आप अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कोई काम तो होगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शौक से वॉशरूम धोते हैं और पब्लिक स्पॉट पे धोना चाहते हैं? देखिए, हम अपने आप को पहचान सकते हैं ना कि जो शख्स हर रोज वॉशरूम में जाता है कई दफा, और जो शख्स उस वॉशरूम की सफाई सुथराई को मुतासिर करता है, उससे उसकी सफाई के लिए भी तो अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को इससे बेनियाज समझता है, अपनी जात से दूसरों को तकलीफ देता है। कितने लोग हैं जो वॉशरूम्स में जाते हैं ना,
हर तरफ पानी फैला के आ जाते हैं। चप्पल पहन के वॉशरूम में जाने की बजाय जूतों समेत चले जाते हैं, क्योंकि जूते उतारना उनकी शान के खिलाफ है। मैं और जूते उतार के जाऊं वॉशरूम में, और वो भी जहां पे मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जूतों समेत जब वॉशरूम में जाते अंदर, पहला पानी फैला के आ गया, दूसरा कीचड़ भरा जूता ले गया। अब बाकी जितने लोग आएंगे कीचड़ में इजाफा। जहां वुजू किया, वुजू करने के बाद कौन सी चीज है जो बेसन को या वुजू वाली जगह को खुश नहीं करने देती? तकब्बुर, अपनी जात की बड़ाई का एहसास, कभी जिम्मेदारी लेने ही नहीं देता, जूता बदलने नहीं देता, वुजू की जगह को क्लीन नहीं करने देता, वॉशरूम क्लीन नहीं करने देता। और कभी आप अपने आप को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कभी आपकी वॉशरूम धोने पे घर में भी अगर ड्यूटी लग जाए तो आपकी क्या कैफियत होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो झाड़ू देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि मैं झाड़ू दूं, मैं पोछा लगाऊं। कुछ लोग बर्तन धोना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, कुछ लोग कपड़े धोना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, कुछ लोग प्रेस करना भी, कुछ खाना बनाना और चपाती बनाना तो काफी लोग ही अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। चलो मुझे ये बताया, आप लोगों में से बिल्कुल सही चपातियां कौन बनाता है? बिल्कुल, अगर आपका टेस्ट लें तो आप बिल्कुल नंबर 1 पे आएंगे। कितने लोग हैं जो चपाती बनाना मुश्किल समझते हैं? अब देखिए, आपने ना करने के लिए एक लाश तलाश कर रखा है कि मुझे चपाती बनानी नहीं आती। आखिर आपने कब तक जाहिल रहना है? कब तक? असल में ये सिर्फ जहालत नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें तो आप कहते हैं, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आटा गूंथते हैं? आटा गूंद लेते हैं, ठीक है। आप लोग आटा नहीं ना गूंथते? नहीं गूंथते, काफी लोग आटा नहीं गूंथते। अच्छा, आटा गूंथना बाद में जरा हाथ साफ करने मुश्किल लगते हैं ना, हालांकि आटे से तो बहुत हाथ साफ हो जाते हैं। खैर, ये तो एक अलग कहानी है, अल्लाह माफ करे। तो आप ये देखिए कि आटा गूंथना, पेड़े बनाना, चपाती बनाना, किचन को नीट करना, किसी डस्टबिन को क्लीन कर देना, अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते। क्यों? क्योंकि लगता है कि छोटे हो जाएंगे। अगर कमोड धो लिया तो छोटे हो जाएंगे, जब यूज किया तो छोटे नहीं हुए, जब उसे धोने लगे तो छोटे हो गए। ये छुपा हुआ तकब्बुर है। इज्जत का एहसास कैसे गुनाह पर जमाता और दूसरों की हकतलफियां करते हैं, खास तौर पर पब्लिक स्पॉट पर। और अल्लाह के घरों में किस कदर, यानी बैतुल्लाह में जाकर भी गंद फैलाने से नहीं रुकते। अल्लाह ताला के घर की सफाई सुथराई के इतना वसी इंतजाम है, लेकिन रियली मुसलमानों के अंदर इस कदर सफाई की सेंस कम है। वो दीन जो कहता है सफाई निस्फ ईमान है, तो निस्फ ईमान कहाँ है? तकब्बुर खा गया, जात की बड़ाई का एहसास, खुद को समझते हैं, छोटे काम नहीं करना चाहते। जहाँ जाएंगे ना, अगर कहीं किसी जगह पे जाके जूते उतारने पड़े तो हर शख्स ने दरवाजे के आगे जूता उतारना है। सारे दरवाजे के आगे एक दूसरे के ऊपर ढेर लगे हैं। कोई जूते तरतीब से क्यों नहीं उतार के रखता? आप अगर नेट पे देखेंगे, ज्यूज को देखें, उनके जूते उनकी मगरबी दीवार के पास, यानी इजराइल में, फलस्तीन में जो इलाका है, असल तो फलस्तीन है, मस्जिद अक्सा वाला हिस्सा मुसलमानों का है और दूसरा हिस्सा ज्यूज के पास। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। हमारे यहाँ दीन सिखाने को लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, छोटा समझते हैं अपने आप को। हम छोटे हो जाएंगे अगर हमारा बच्चा किसी
ऐसे स्कूल में ना पढ़ा जहां पे जिंदगी भर की कमाई लुटाई जा सके। अगर उसने दीन सीख लिया तो वो तो छोटा ही रह जाएगा, फिर वो जमाने में क्या करेगा? कोई नहीं सोचता कि जब वो दुनिया से चला जाएगा तो क्या करेगा। क्या ऐसा नहीं है कि लोग यानी बहुत गरीब घरानों में, दूर दराज के इलाकों में भी जो बच्चा ज़हीन हो उसको जनरल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन दिलवाई जाती, जितने किसी की तौफीक। लेकिन जिसको कुछ ना करना आए, चलो ये दीन पढ़ ले, मदरसे में दाखिल करा दो, अपनी दाल रोटी कर लेगा। यह कॉन्सेप्ट है जिस उम्मत का। उसको जरूर सोचना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं इब्लीस की। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया। सैयदना हारिसा बिन वहब फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें दोज़ख वालों की खबर न दूं? साहबे कराम ने अर्ज किया, जी हाँ जरूर, फरमाइए। आपने फरमाया, हर जाहिल, अक्खड़ मिजाज, तकब्बुर करने वाला दोस्ती है। मुस्लिम की 7187 नंबर रिवायत। मैं आपसे 2 सवाल करूंगी, सच्चा जवाब दीजिएगा। आप लोगों में से कितने लोग बहुत नरम मिजाज कितने लोग हैं? अच्छा आप देखें जरा इर्द-गिर्द कितने नरम मिजाज हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अक्खड़ मिजाज हैं? अब आप देखिए, दोनों बातें नहीं मानेंगे। हालांकि नरम मिजाजी नहीं तो अक्खड़ मिजाजी जरूर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान अपने दोस्त के साथ अच्छा होता है, जिसके साथ उसका मोहब्बत भरा ताल्लुक है, वहां बड़ा नरम मिजाज होता है। लेकिन वो जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ऊंटनी के पांव काट डाले थे ना, ऐसे ही लोग ऊंटनी जैसे लोगों पर, जो कमजोर लोग होते हैं ना, उन पर चढ़ दौड़ते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जाहिल, वॉशरूम जाते हुए कितने लोग चप्पल पहन के नहीं जाते? जरूर सोचिए। बेशक मेरे आगे हैंड रेज ना करें, और पब्लिक स्पॉट्स पे खास तौर पे हर जाहिल माँ बाप से कैसे बात करते हैं, अम्मी आप हमेशा ऐसे ही कहती रहती हैं, ये जहालत है, अक्खड़ मिजाजी है। कि वकुल लहुमा कौलन करीमा, अल्लाह पाक ने तो फरमाया उनसे करीम बात करो। आप करीम बात तो करते हैं, लेकिन करीम से बात करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कौले करीम की जगह करीम है। अल्लाह अकबर। तो क्या मैं तुम्हें दोज़ख वालों की खबर ना दूं? हर जाहिल, अक्खड़ मिजाज, तकब्बुर करने वाला दोस्ती है। आप तीनों खुसूसियात में देखिएगा, जाहिल, अक्खड़ मिजाज, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर की एक निशानी सेल्फी बनाना भी है। उसके लिए आपके दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आप नरम मिजाज हैं अपने कहीं। बहरहाल इन चीजों के बारे में सोचना जरूर चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसमानों को लपेट लेगा, फिर उन्हें अपने दाएं हाथ में लपेट कर फरमाएगा, अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ। अयनल मुलूक, जोर वाले बादशाह कहाँ हैं? अयनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? फिर जमीनों को अपने दाएं हाथ में लपेट कर फरमाएगा, अनल मलिक, अयनल मुलूक, अयनल जब्बारून, मैं बादशाह हूँ, जोर वाले बादशाह कहाँ हैं? तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? ये मुस्लिम की 7051 नंबर रिवायत है। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा
जिसके दिल में रत्ती बराबर भी गुरूर और घमंड होगा। एक शख्स बोला, हर एक आदमी चाहता है उसका जूता अच्छा हो और कपड़े अच्छे हों। आप क्या चाहते हैं? जूते कपड़े अच्छे चाहते हैं। हर शख्स ये चाहता है कि उसके जूते और कपड़े अच्छे हों। तो क्या ये भी गुरूर और घमंड है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। गुरूर और घमंड तो यह है कि इंसान हक को नाहक करे, यानी अपनी बात की पिच या नफसानियत से एक बात वाजिबी हो और सही हो, उसको रद्द कर दे और ना माने। लोग बहस करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी बात ही आगे रखते हैं। और आप इसे देखते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट चैनल्स पर। एंकर्स बैठते हैं तो आप देखते हैं ये हमारी कौम का मिजाज, मैं किसी एक फर्द की बात नहीं करती, हमें अपने आप को देखना चाहिए। आपने फरमाया जो लोगों को हकीर समझे। अब सोचें किसको आप हकीर समझते हैं और किसको आप बड़ा समझते हैं। सोच से पता चलता है कर्ज अमल का। हकीकत ये कि इंसान के लिए दुनिया में दो मुमकिन रास्ते हैं, या तो फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे झुक जाएं, हाँ उसके लिए अपने से बज़ाहिर कमतर फर्द की बात माननी पड़े, ये मलकूती रवैया है। और दूसरा रवैया इब्लीस की तरह अपने आप को बड़ा समझना है और दूसरों के आगे झुकने से इनकार करना। इससे तकब्बुर की आग भड़कती नजर आती है, ये शैतानी रवैया है। दुनिया में ऐसे मौके पैदा होते रहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए जब भी अल्लाह ताला का कोई बंदा उठता है, उसके लिए फिर वही इम्तिहान के हालात पैदा हो जाते हैं। हक की दावत देने वाला भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, जिसके सामने सब लोगों को झुक जाना चाहिए, मगर तकब्बुर और तासुब की वजह से जो लोग हक की दावत को कबूल नहीं करते, वो शैतान की बात मानते हैं, इब्लीस की पैरवी करते हैं, जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल नहीं किया। और इस तरह अगर हम देखते हैं तो उसने दरअसल अल्लाह की अजमत को नहीं पहचाना। यानी जब आप किसी की नेकी की दावत को नहीं मानते तो दरअसल आप अपने रब को पहचानते नहीं। कि उसने मुझे रब के बारे में और रब के हुक्म के बारे में बात की है, तो आप हुक्म को देखने की बजाय सामने वाले को देखें, ये इब्लीसी रवैया। तो जिससे अल्लाह ताला को नहीं पहचाना वो हक से भी महरूम हो गया और अल्लाह ताला से भी महरूम हो गया। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहां से चाहो दोनों खूब खाओ और इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो दूसरी फजीलत दी गई वो जन्नत में बसाना था, यानी बहुत आला मकाम दिया। आला तरीन मकाम पर उन्हें रिहाइश दी गई, जिंदगी गुजारने का मौका दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा है आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उन्हें फजीलत अता फरमाई, फिर उनमें से उनकी बीवी सैयदा हव्वा को पैदा किया और अपनी नेमत पूरी कर दी ताकि वो अपनी बीवी के पास सुकून हासिल करें। फिर उन्हें दूसरी फजीलत दी कि उन्हें जन्नत में बसा दिया और हुक्म दिया, जहां से चाहो फल और मेवे खाओ। आज के ज़ाहिर से ये पता चलता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जाने से पहले सैयदा हव्वा पैदा हो चुकी थी और फिर दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म मिला। लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद
اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے تنہا سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا. سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے مگر تنہائی کی وجہ سے اکثر گھبرایا کرتے تھے. ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. دونوں چیزیں سامنے ہیں لیکن جنت کی ایک خصوصیت کو ذہن میں رکھیے گا, جنت میں کوئی گھبرا نہیں سکتا, جنت میں کسی کو تکلیف نہیں آ سکتی. تو یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ سیدہ حوا جنت میں جانے سے پہلے ان کے ہمراہ کر دی گئی تھی. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان دنوں میں سے بہتر جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے کہ اسی میں سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی میں جنت میں گئے اور اسی میں وہاں سے نکلے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے وہ جمعے کا دن تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا تھا. یہ فضیلت جب ملی تو وہ جمعے کا دن تھا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ. یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر جنت میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی, ایک پابندی تھی اس کے ماں سوا نہیں. بفراغت ہر پھل کھانے کی اجازت دی گئی. رب العزت نے فرمایا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لا تسمعوا فيها ولا تضحى یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے, اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اتنی عیش کی زندگی بسر کرانے کے لیے جنت میں بھیجا گیا, لیکن ایک پابندی عائد کر دی گئی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا. آزمائش کے لیے یا کسی حکمت کے تحت اس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں, اور جتنے لوگ اس بارے میں کوئی بھی چیز بتاتے ہیں سب قیاس آرائی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی علم نہیں دیا. کوئی بھی ذات ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی بھی درخت ہو, بس ایک کام تھا نا, ایک چیز تھی آزمائش کے لیے, ادھر نہیں جانا, اس طرف نہیں جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, یعنی بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ نہیں تحریم ہے کیونکہ اس ممانعت پر عمل نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے, یعنی اس درخت کا پھل کھانا حرام تھا, حرام قرار دے دیا کہ نہیں آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ اگر کھاؤ گے تو ظلم ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظلم کیا ہے؟ کسی حقدار کو حق نہ دینا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو حق نہیں دیتے. اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی فرما برداری کی جائے. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتا. تمام اعضاء اور اشیاء اور نعمتوں کا حق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے لگایا جائے. تو دراصل نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں دیتا. پھر اب دیکھیے کہ اپنی ذات کا حق ہے کہ اسے تباہی سے بچایا جائے, تو نافرمانی کر کے گویا اپنی ذات کو سزا کا مستحق ٹھہرایا اور اپنی ذات پر ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو بات ایسی نہیں تھی کہ ادھر حکم ملا اور ادھر وہ پورا ہو جائے. اگر آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دین فطرت پر پیدا کیا تھا. ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتے, نہ ارادے کی خرابی تھی, نہ دور دور تک اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے. پھر بھی نافرمانی ہو گئی. یہی معاملہ دنیا کے انسانوں کا ہے. جو انسان
नेकी के रास्ते पे चलना चाहता है उससे गुनाह हो जाते हैं, जो गुनाहों से बचना चाहता है उसके कदम फिसल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? अल्लाह ताला ने इसी के लिए आसमानों पर होने वाले वाक़े की हकीकत को हमारे सामने रखा है। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुलना इहबितू बअज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तो शैतान ने उन दोनों को उससे फिसला दिया, सुनाचे उसने उन दोनों को उस जगह से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और फायदा उठाना है। जरा नोट कीजिएगा, फ़अज़ल्लहुमा, दोनों के कदम फिसला दिए, अश-शैतानु, शैतान ने, अन्हा, उस हुक्म से। अल्लाह ताला का हुक्म कहाँ था? यादों में, शऊर में लिखा हुआ तो नहीं था। हुक्म तो अमल करने के लिए होता है ना। हुक्म अच्छे तरीके से याद था। अल्लाह ताला के अहकामात बंदों को याद होते हैं, फिर भी उनके कदम फिसल जाते हैं। कदम कैसे फिसलते हैं? फिर भी वो नाफरमानी कर जाते हैं। नाफरमानी कैसे होती है? इमाम रागिब लिखते हैं, बगैर कसद और इरादे के पांव की लग़ज़िश को कहते हैं फ़अज़ल्लहुमा, फ़अज़ल, कि इरादा भी नहीं था और पांव लड़खड़ा भी गए, तो साबित करनी तो गई, हुक्म तो छूट गया। ये मुफ़रदातुल कुरान की रिवायत है। सैयदना इब्न मसूद, सैयदना इब्न अब्बास और जमहूर उलमा का ख्याल है कि शैतान ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बरह रास्त और रूबरू जाकर बहकाया, यानी ये महज ख्याल नहीं था। जैसे आम इंसानों में वसवसे डाले जाते हैं, तो शैतान उनके सामने आया था। हम कुरान हकीम से जब देखते हैं सूरा अल-आराफ की आयत नंबर 20 और 21 में, पहली बात हमें मिलती है फवस्वस लहुमा शैतानु, फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला। वसवसा छुपे हुए ख्याल को कहते हैं। तो इब्लीस ने ख्याल डाला था, यानी उनके दिल में बात डाली थी। क्या आप जानते हैं वसवसा शैतान का कदम है। शैतान इंसान के अंदर कैसे कदम रखता है? एक ख्याल से ख्याल डालता है। जरूरी नहीं कि वो ख्याल इंसान कबूल कर ले, लेकिन जब कोई इंसान गाफिल होता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कोई ख्याल मेरे दिल में आया, इग्नोर कर देता है। शैतान फिर ख्याल डालता है, अब देखो इसकी क्या सूरत हाल, वो फिर भी नहीं समझता, गौर नहीं करता। तो ऐसा नहीं होता कि हम जिन चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर नहीं जा रही होती, उनको एड्रेस करना पड़ता है। अगर आप उन्हें एड्रेस नहीं करते तो आपके अंदर जाके अपना मकाम बनाते हैं। ख्यालात खवातिर कहते हैं, इस्तिलाहान इसे है खवातिर। हाफिज इब्न कय्यम की एक किताब है सईदुल खवातिर, सईदुल खातिर है या खवातिर। तो इब्लीस जो है शिकार तो करता है ना अपने वसवसों से। वसवसों से किस तरह से इंसान पूरे के पूरे इंसान को चारों शाने चित गिरा देता है। एक ख्याल आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर एक फिल्म ही चल निकलती, और इंसान को लगता है गोया यही मेरे दिल में मेरी बात। एक्सेप्टेंस लेवल इतना हाई है, वो कहीं से सोच ही नहीं सकता कि ये मेरी बात नहीं। अब जब कबूलियत का ये स्टैंडर्ड है
कि इंसान 100% कबूल कर चुका, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जहन रीप्रोग्राम कर दिया इब्लीस ने। प्रोग्रामिंग में फॉल्ट आ गया ना, फ्लॉ आ गया। अच्छा भला वो सीधे रास्ते पे जा रहा था, उसके शऊर में एक बात पुख्ता थी। आदम अलैहिस्सलाम को देखिए, आदम अलैहिस्सलाम के शऊर में ये बात रासिख थी। अल्लाह ताला कहते हैं उनके मिसाल से समझो। फवस्वस लहुमा शैतानु, फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला। पहले शैतान की गोल सेटिंग पर बात की है कि उसका गोल क्या था। आप अपने कामों का गोल सेट करते, जिंदगी का गोल, कामों के लिए मकासद का तयन करते, कोई काम किस लिए करना। तो शैतान सोया हुआ नहीं था, गाफिल नहीं था, यूं ही दिल में आया तो काम कर लिया, ऐसे नहीं था, प्री प्लान था। उसका मकसद मुतय्यन था। गोल क्या था? लियुब्दिया लहुमा मावूरिया अनहुमा मिन सवातिहिमा, ताकि उन दोनों के लिए जाहिर कर दे उन दोनों की शर्मगाहों से जो कुछ उनसे छुपाया गया था। ये उसका ऑब्जेक्टिव था। रियली आज भी इब्लीस का गोल नहीं चेंज हुआ। अगर आप औरत मार्च पे प्ले कार्ड्स आज भी निकाल के देखें, आपको मिलेंगे। जानते हमारी जनरेशन पर कैसे काम किया जा रहा है। हर लड़की को पैदा होने के बाद जरा सी वो बड़ी होने लगती है, उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, अपने पोशीदा आज़ा किसी के सामने जाहिर नहीं करने, कवर करती है माँ, बहन भाइयों के सामने नहीं, बाप के सामने नहीं। फिर जब और बड़ी होती है, वो खुद अपने पोशीदा आज़ा की हिफाजत करती है। उसकी चाल में भी शर्म होती है, उसके बैठने उठने में, उसके लिबास पहनने में भी। अब हमारी यूथ पे कितना बड़ा काम किया गया, कितने बड़े पैमाने पे यूथ ने इसे कबूल किया, और बड़ी उम्र की खवातीन ने नमूना बनकर दिखाया। और बड़ी उम्र की खवातीन ने इस मार्च में प्ले कार्ड उठा रखे थे। एक लड़की की तस्वीर जो पूरी टांगें खोल के बैठी है, और उस पर लिखा है लो बैठ गई सही से, लो बैठ गई सही से। अब आप इस आयत पे आइए, लियुब्दिया लहुमा मावूरियानहुमा मिन सवातिहिमा, ताकि उन दोनों के लिए जाहिर कर दे उन दोनों की शर्मगाहों से जो कुछ उनसे छुपाया गया था। क्या देखते कितनी तेजी के साथ हमारे माहौल में चेंज आई है। सेल्स गर्ल्स और बड़े मॉल्स में, इवन पेट्रोल पंप्स पे, बस होस्टेसेस है, उन्हें कैसा ड्रेस पहनाया जाता है, अच्छे तरीके से औरत की शर्मगाह पूरे तरीके से जाहिर हो। टाइट पैंट्स और ऐसी शर्ट जिनसे सीना नुमाया हो। जाहिर है कि इससे किसी के अंदर अल्लाह ताला की इबादत के लिए एहसास तो उजागर नहीं होंगे। लोग अल्लाह का जिक्र थोड़ी करेंगे ऐसी हालत में औरत को देख के। इतनी बड़ी तादाद में जब मर्द भी देखते हैं, औरतें भी देखते हैं, तो सारे इम्यून नहीं हो जाते। इम्यून हो गई सोसाइटी। मौलाना हजरात भी बुरा नहीं समझते, अब कोई कुछ कहता ही नहीं। हर किसी ने ऐसे ड्रेसेस पहना दिए। और अभी ये ड्रेसेस और चेंज होने वाले हैं। जब इन पे काम होता है ना, तो तवील से काम होता है। आप देखिए कि एक मशहूर ब्रांड है, अभी भी आज भी उन जाए तो तब भी आपको ऐसे चीजें मिलेंगी। जीन्स का ब्रांड है, उसके स्टोर पे
स्पेशली ये चीजें लिखी होती हैं, इवन उनकी वेबसाइट पे भी, उनके बाकी जगहों पर, उनकी एड्स में भी ये चीजें नुमायां होती हैं। पहले जब इसको कॉमन किया गया तो ख्वातीन के लिए खुसूसी तौर पर और मर्दों के लिए भी ऐसी पैंट्स जिसकी वजह से उनकी हिप लाइन नजर आए, अपने आप को छुपाना मुश्किल हो जाए। अभी किसी ने कोई एक पोस्ट लगा रखी थी कि मैं अपनी बच्ची के लिए कोई ड्रेस खरीदने के लिए गया तो मुझे कोई भी स्लीव्स वाला फ्रॉक नहीं मिल सका, स्लीवलेस फ्रॉक, और बड़ी बच्चियों के लिए। आप ओवरऑल सोसाइटी की चेंज को देखें, पहले बहुत छोटे बच्चे थे, उनके बारे में लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट कर गए कि इन्हें स्लीवलेस पहना ले, इनकी टांगे अगर ओपन हो जाए कोई बात नहीं। फिर थोड़े बड़े बच्चे, फिर और बड़े, अब यंग लड़कियां, यंग खवातीन सब के सब ऐसे ड्रेसेस पहनने लग गए। तो ऐसा नहीं होता। मौलवी पर तो एतराज था कि वो टखनों से ऊंची रखता है सलवार। आज किसी को एतराज है? कोई एतराज नहीं करता। किसी औरत का ट्राउजर कहाँ जा रहा है, उसने शॉर्ट्स पहनी है, उसने ड्रेस कैसा पहना है, इसको टॉलरेंस का नाम दिया गया। बुराई को टॉलरेट करें, अस्तगफिरुल्लाह। ये अगरचे किसी कंपनी की तरफ से कोई चीज आ रही होगी, किसी मीडिया चैनल की तरफ से कोशिश हो लिखारी लिखें, या इसके लिए डिजाइनर्स काम करें, पीछे तो वही है। अपने असल दुश्मन को पहचाने। ये तो सब शिकार हुए हुए लोग हैं, शिकार हुए हुए इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। असल गोल क्या है? लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सव्वातिहिमा, ताकि वो उन दोनों के लिए जाहिर कर दे उन दोनों की शर्मगाहों से जो कुछ उनसे छुपाया गया था। वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। और उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और उसने उन दोनों के सामने कसमें खाई, बिला शुबा मैं तुम दोनों के लिए यकीनन खैरखाहों में से हूँ। आसमान पर किस तरह से उस गलती का इर्तिकाब हुआ, उसको रब्बुल इज्जत ने दिखाया है सारी नस्ल इंसानी को सबक हासिल करने के लिए। ये गोया एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो लफ्जों में हमारे सामने रखी गई, लेकिन हम सब उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं कि इब्लीस ने उनके साथ क्या अमल किया होगा। यही अमल आज हर इंसान के साथ मुसलसल होता चला जा रहा है। तो शैतान ने सईदा आदम अलैहिस्सलाम और सईदा हव्वा दोनों को दरख्त का फल खाने के लिए उसकी कशिश दिलाई, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए खूबसूरत तरगीबात दिलाई, दोस्त के रूप में वसवसे डाले, उम्मीदें दिलाई, यूं बहका कर अपने जाल में फंसाकर जन्नत से निकलवा दिया। सईदा आदम अलैहिस्सलाम शैतान के झांसे में आ गए। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह तौहा है और आयत नंबर 115, वलक़द अहिदना इला आदमा मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अस्मा। और इससे पहले आदम को हमने ताकीद की तो वो भूल गया और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी न पाई। तो इंसान के भटकने का आगाज ऐसे ही होता है कि इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है और उस हद में कदम रख देता है जहां जाने से अल्लाह ताला ने रोका है। वो उसे हमेशा की जिंदगी और लाजवाल सल्तनत का लालच देता है। आज भी शैतान इंसान को सीधे रास्ते से हटाने के लिए यही हरबा यूज कर रहा है।
लालच तो एक ही है। कौन है आप में से कितने लोग हैं जो अभी इस वक्त फौत होना चाहते हैं? मैं इसलिए इस तरह के सवाल आपसे कर लेती हूँ कि आपको पता चले कि ये बात हमारे अंदर किस हद तक मौजूद है, कितनी बड़ी तमन्ना है सदा जीने की। तो ये हमारी कमजोरी है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने किस तरह से इस वाक़े के तवस्सुत से ये बात वाज़ेह कर दी थी, हमेशा की जिंदगी, लाज़वाल बादशाहत यानी जन्नत। आप सोचें, हर कोई अपने घर को जन्नत बनाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बना ले, अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहता है। उसे काम करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन क्या यही काम करना है? क्या जिंदगी इसी काम के लिए मिली थी कि बस यही काम करते रहें? तो हमेशा की जिंदगी और लाजवाल सल्तनत, ये लालच। इंसान चाहता है जहां मैं हूं उससे आगे जाऊं, और कहीं उसकी बात खत्म नहीं होती। और आप सोचें, ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो अपने लिए उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमें हमारी जिंदगी की गुजर बसर के लिए इतना कुछ चाहिए, बस उतना काम करते हैं और उसके बाद बाकी वक्त अल्लाह ताला के दीन की दावत और तबलीग के लिए, तालीम के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंसान चाहे, उसकी जिम्मेदारी है, मुआशी जिम्मेदारी मर्द की है, तो जो मर्द अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वक्त लगा रहा है और अपने बच्चों के गुजर औकात के लिए, उनकी रोजी के लिए, तो वो मेरे बाद भी फकीर ना रह जाए, कोशिश करता है। इसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन हर एक को, किसी को फुल टाइम, किसी को पार्ट टाइम वक्त तो लगाना है, दुनिया तक अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाना है। ये वक्त सिर्फ खवातीन ने नहीं लगाना, मर्दों ने भी उसी तरह से ये वक्त लगाना, और असल जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। अखरजहुमा मिम्मा काना फीह, चुनांचे उसने उन दोनों को उस जगह से निकलवा दिया जिसमें वो थे। शैतान ने उन्हें जन्नत से दुनिया की बदबख्तियों की तरफ निकलवा दिया और इताअत से नाफरमानी की तरफ निकलवा दिया। वकुल नहबितु, और हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ। जब आदम अलैहिस्सलाम और सईदा हव्वा दोनों भूल गए, उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नेमत भरी जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया और उन्हें दुखों, तकलीफों और सख्त मुशक्कत के लिए जमीन पर उतार दिया। जन्नत में तो कोई गम नहीं था, और दुनिया में गम और दुख है, और जन्नत में इंसान के लिए कोई मुशक्कत नहीं थी, बगैर मुशक्कत के रोटी मिलती थी, और दुनिया में मुशक्कत उठानी पड़ती है। और जन्नत में किसी किस्म की बीमारी नहीं थी, दुनिया में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं। तो जमीन पर हम अगर ये समझते भी हैं कि हम ऐश करने आए हैं, तो इस गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिसके ऐश के पीछे दुख न लगे हुए हों, जिसके लिए कोई मुसीबत ना हो, जिसके लिए कोई बीमारी ना हो, जिसके लिए कोई परेशानी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम समझते हैं, आपने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो। यानी 5 चीजें हैं जिनके पीछे 5 दूसरी चीजें लगी हुई हैं, इससे पहले के पीछे आने वाली 5 पहली 5 को गिरा ले, इस दिए हुए वक्त से फायदा उठा लो। आपने फरमाया अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, यानी बुढ़ापा तो पीछे लगा हुआ है, तो अपनी जवानी के वक्त से फायदा उठा लो, इस वक्त को यूं जाया ना करो। अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फकीरी से पहले, अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। तो ये 5 चीजें तो दुनिया में है, और जन्नत में बाकी पहले वाली 5 चीजें, सेहत भी है, हमेशा की जवानी, हमेशा की जिंदगी,
اور ہمیشہ کی فرصت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وہاں بیکار ہوں گے. انسانوں کا کام تو ہوگا لیکن اعلیٰ درجے کا کام. ایسا کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے انہیں کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی مشقت ہو، کوئی پریشانی ہو. پھر فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی ابلیس اور اس کی اولاد اور سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہے. دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی تو کوشش کرتا ہے. دشمنی میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہر دشمن، بیٹا دشمنی میں ہر دشمن یہ چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کو بھلائی سے محروم کر دے، اپنے دشمن کو بھلائی سے محروم، ہر بھلائی اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، آدم کے بچوں کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن بنا لو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں. تو شیطان کس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان ناکام ہو جائے، انسان کو ٹوٹل لاس تک پہنچانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی میں اسے آگ میں جلا ڈالنے کے لیے، آگ میں لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے جانے کا مقصد واضح فرمایا کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا. پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جس سے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، خاص مدت تک کے لیے ہے. یہ خاص وقت انسان کے لیے اس کی زندگی ہے اور ساری کائنات کے لیے قیامت تک وقت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کسی کے لیے مستقل ٹھکانہ نہیں. سیدہ عائشہ سے جو روایت ہے بہت گہری ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. تو جو دنیا کو اپنا گھر بناتا ہے اس کو جان لینا چاہیے دنیا تو اسی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. تو جو دنیا میں اپنا گھر بنانے، گھر سنوارنے، گھر کی خوبصورتی کو لیے کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس سے رب کب یاد رہتا ہے؟ اس کی سوچ پھر باہر جا ہی نہیں سکتی. میں بہت عرصہ پہلے ایک خاتون سے ملی، بہت پیاری خاتون، اس قدر خوبصورتیوں سے محبت کرنے والی اور اپنے ہر لباس کو یعنی خاص لباس بنانے کے لیے بہت شدید محنت کرنے، اس قدر انہیں ہاتھ کی کڑھائی سے بھی بہت محبت تھی اور ایسے نفیس کام وہ اپنے لباس پر کرواتی تھی. میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ ایک ڈریس بنوانے کے لیے تقریباً کتنا عرصہ پہلے سے کوشش کرتی ہیں؟ تو کہتی ہے تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں اس کو تیار ہوتے ہوئے. تو میں نے کہا اچھا پھر اسے کتنی بار پہنتی ہیں؟ کہتی ہیں ایک بار، اس سے زیادہ نہیں. کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار جب میں پہن لیتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں کہ اب میں پھر اسے ریپیٹ کروں. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں سال کے 365 دن اور 365 دنوں کے لیے 6 ماہ درکار. اس کے لیے ذہن بھی لگانا پڑتا ہے، زندگی لگانی پڑتی ہے. پھر انہوں نے گھر بنوایا.
گھر بھی بہت ہی خوبصورت بنایا. میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کا گھر بن گیا, آپ نے کہا تھا میں شفٹ ہو جاؤں گی تو میں فارغ ہو جاؤں گی. کہتی ہے اب میں بہت مصروف ہو گئی ہوں. میں نے کہا اب آپ کی کیا مصروفیت؟ کہتی ہے کہ صبح جب میرے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں اس وقت سے لے کے ان کے آنے تک میں کنٹینیوسلی اپنے سرونٹس کے پیچھے بھاگتی ہوں صفائی کروانے کے لیے. صفائی کرواتے کرواتے شام ہو جاتی اور اس وقت تک میں بہت تھک جاتی ہوں. پھر میرے ہسبینڈ آتے ہیں تو ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے, کبھی کھانا باہر کھا لیتے ہیں, کبھی گھر میں کھاتے ہیں. تو بس پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کس طرح گزرتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح دن رات بیتتے چلے جا رہے ہیں. میرے پاس تو بالکل فرصت نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کام آپ کے ملازم کرتے ہیں آپ ہر روز نگرانی کرتی ہیں, کچھ ٹائم انہیں اتنا سیکھنے کے بعد انہیں آزادی سے بھی کرنے دیں, تو آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ وقت نکالیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ میری صفائی کے سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے. مطلب چھوٹی سی بھی کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں نے وڈ کا کام کروایا, میں نے فلاں جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز جو ہے میں فلاں ملک سے اکٹھے کر کے لے کے آئی. تو اب تو مجھے یعنی میں نے تو سوچا تھا میں سکون کروں گی, لیکن اب ان کو صاف ستھرا رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. جب کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا, تقریباً کوئی 5 سال جب گزر گئے تو مجھے پتا چلا کہ وہ گر گئی ہیں اور قومے میں چلی گئی. جب قومے میں گئی تو خیر یعنی ان کا حال چال پوچھنے کے لیے کوشش کی, لیکن میں ان کے پاس نہیں جا سکی کیونکہ یعنی کافی عرصہ وہ قومے میں رہ چکی تھی پہلے, اور جب مجھے پتا چلا تو میرے جانے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. زندگی لکڑیاں, پتھر, شیشہ, چینی, کپڑے اور ایسی دوسری چیزوں سے دنیا کو جنت بنانے کے لیے ملی تھی. اس جنت کو چھوڑنے والے چلے کیوں جاتے ہیں؟ وہ جہاں جاتے ہیں مٹی کے نیچے, اس مٹی میں تو انہیں وہ سب کچھ میسر بھی نہیں ہوتا اور ان کے لیے نفع مند بھی نہیں ہوتا. پھر ساری زندگی اس طرح کے کاموں میں کیوں لگا دی جاتی ہے؟ سورہ الکہف میں رب العزت نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ گمان کرتے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں بالکل مطمئن تھی. وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا گھر بن جائے گا تو میں قرآن پڑھوں گی. پھر مہلت نہیں ملی. جب انسان دنیا کو جنت بنانے میں لگ جاتا ہے نا تو اللہ تعالی جنت جانے کی حرص بھی ختم کر دیتا ہے. وہ جیسے بنو نذیر کے بارے میں رب العزت نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے راستے سے آیا کہ انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. مدینہ میں رہنے والے بنو نذیر اپنی طاقت پر بڑے نازا تھے کہ ہمارا اسلحہ زیادہ, ہمارا مال زیادہ, ہمارے گھر, ہمارے محلات ایسے ہیں, کوئی ہمیں فتح نہیں کر سکتا. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت توڑ دی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے اکاڑے, انہوں نے اپنے مردوں کے بارے میں فیصلہ کروایا, اور جب فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ دیا تو یہ کہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں, جوان لوگ قتل کر دیے جائیں, اور جو بوڑھے بچ جائیں, عورتیں اور بچے بچ جائیں, انہیں جتنا سامان گدھے پر لے جا سکتے ہیں اتنا سامان لے جائیں. جن کے گھر سونے سے بھرے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں ہر چیز کو برباد کر کر کے جا رہے تھے.
ایسے ही जो लोग इस दुनिया की जिंदगी में समझते हैं कि हम करने वाले तो हम हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे पास बड़ा वक्त है, अभी खेलने खाने के दिन है, फिर जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे हम भी कर लेंगे, तो अल्लाह ताला वो वक्त ही नहीं आने देता। और दुनिया की मोहब्बत में बूढ़े इंसान से ज्यादा कोई हरीस नहीं होता, दुनिया से ज्यादा मोहब्बत रखता है और लंबी उम्र से मोहब्बत रखता है। तो दुनिया कभी जन्नत नहीं बनेगी, जन्नत की हिर्स तो हर एक के अंदर है, जन्नत तो रब ही की है। उसी जन्नत के लिए आज कोशिश करनी है, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना माल उस रास्ते में लगाना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस आयत से पता चलता है जिंदगी आरजी है, खास मुद्दत तक के लिए है, ये खास वक्त इंसान की जिंदगी का है और सारी कायनात के लिए कयामत तक का है। दुनिया तो किसी का मुस्तकिल ठिकाना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्लीस की दुश्मनी की हकीकत वाज़ेह की है। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है, फुला चीज किसने पैदा की, फुला चीज किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी को ऐसा वसवसा आए तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला से पनाह मांगे और शैतानी ख्याल को छोड़ दे। ये बुखारी की 3276 नंबर रिवायत। सईदा अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ौजा थी कि आपके पास से एक आदमी गुजरा, आपने उसे बुलाया, वो आया तो आपने फरमाया, ऐ फुला ये मेरी फुला बीवी है। उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं कौन होता हूँ कि मैं ऐसा गुमान करूँ, और न ही मैंने आपके बारे में ऐसा गुमान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, वसवसा आता है ना कि जाने कौन है। मुस्लिम की 5678 नंबर रिवायत। शैतान कल भी इंसान का दुश्मन था, शैतान आज भी इंसान का दुश्मन है। शैतान ने कल आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाया तो उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। शैतान की ये दुश्मनी आज भी जारी है, वो इंसान को बरगलाता है ताकि इंसान उस हद के अंदर कदम रख दे जिसमें जाने से अल्लाह ताला ने रोका है। इसके लिए वो इंसान की जहन साजी करता है, प्रोग्रामिंग करता है, बुराई को खुशनुमा बनाकर दिखाता है, यकीन दहानी करवाता है कि इस बुराई के नतीजे में लोगों की नजरों में मुकाम मिलेगा। वो दुनिया में रहने के लिए बुराई को नागजीर बनाकर दिखाता है, इंसान को ये महसूस करवाता है अगर इस बुराई को छोड़ दिया तो जीना मुमकिन नहीं रहेगा। जैसे सूद खाने वाले ये सोचते हैं सूद छोड़ दिया तो फिर जिएंगे कैसे। कोई औरत कहती है मैं तो बेवा हूँ, अगर मैंने किसी को माल दे दिया तो मेरा माल चला जाएगा, फिर मैं कैसे जीऊंगी, मेरे लिए तो सूद खाना नागजीर। यानी बुराई को किसी न किसी लॉजिक से अपनाते हैं। यूं इंसान बुराई कर लेता है। इंसान के भटकने की इब्तिदा तो यहीं से होती है। जब इंसान भटकता है तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाता है। इंसान के लिए पलटने का, तौबा करने का मौका तो अल्लाह ताला ने मौत से पहले बाकी रखा है, लेकिन शैतान बरगलाता तुम्हारी तौबा कब सुनी जाएगी। बल्कि शैतान तो इस हद तक बरगलाता है, दुआ करना चाहते हो, गुनाहगार हो, तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी, तुम्हारी तो दुआ भी कबूल नहीं होनी। कोई ऐसा शख्स ही तुम्हारे लिए दुआ कर सकता है जो यानी जिसकी दुआएं कबूल होती हो। फिर वो उसे बरगलाता है कि ऐसा शख्स तो अब जिंदा नहीं रहा, किसी कब्र में है, जाओ चादर चढ़ा दो, कोई देग चढ़ा दो और उससे दरखास्त करो, वो तुम्हारी दुआएं पहुंचा देगा। फिर लोग कब्र वालों को पुकारते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी मदद को आइए, वो अपनी मदद नहीं कर सकते और इस तरह लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं।
تو कैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान दुआ मांगने से महरूम होता है, कैसे इंसान के लिए नेकियां करनी मुश्किल और गुनाह करने आसान हो जाते हैं। यही शैतान का मिशन है, यही दुश्मनी है, ये दुश्मनी आज भी जारी है। सवाल ये पैदा होता है, इस दुश्मनी का तोड़ क्या है, इस दुश्मनी से कैसे बचा जा सकता है? इरादा और दुआ, ये कुव्वत इरादा है जो रब से मिला सकती है, जो जन्नत ले जा सकती है, और शैतान का वार इसी इरादे पर होता है। इब्लीस चाहता कि इंसान नेकी का इरादा ना कर पाए, नेकी के इरादे के रास्ते में हायल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है इंसान भलाई का, नेकी का इरादा कर लेगा तो उसका इरादा पूरा हो जाएगा। इब्लीस इस इरादे को वायरस लगाता है और उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। आज आदम का हर बच्चा इसी तकलीफ में है, वो भूल जाता है, फिर नाफरमानी करता है और भटक जाता है। इसलिए जो भटकने से बचना चाहता है उसको भूलना नहीं चाहिए, और इंसान के पास याद रखने का वाहिद तरीका इल्म है, नसीहत है। नसीहत और इल्म, मुसलसल नसीहत, या तो मुसलसल नसीहत करता रहे कोई, या मुसलसल इल्म हासिल। लेकिन होता यूं है कि जो शख्स एक बार किसी चीज को पढ़ लेता है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की किताब को, वो समझता है मुझे तो पहले ही पता है, मुझे अब इस नसीहत की क्या जरूरत है, मुझे सब पता है। उसकी तवज्जो पर वार करता है, उसे इल्म की मजालिस में फोकस नहीं रहने देता, गौर नहीं करने देता। आप नॉर्मली ऐसे लोगों को देख सकते हैं इल्म की मजालिस में, उनकी तवज्जो कहीं और ही चली जाती। कुछ लोग होते हैं वो कहीं भी चले जाएं, उनके हालात नहीं बदलते। तो शैतान नसीहत कबूल नहीं करने देता, नसीहत करने वालों से नफरत करवाता है, और अहले इल्म के करीब नहीं होने देता, डराता है, खौफ पैदा करता है, दहशत पैदा करता है दिलों में। तब सोचें, इल्म हासिल करने के बावजूद भी शैतान धोखे देता है, और इल्म वालों को जो धोखे देता है वो बड़े खतरनाक है। इल्म वाले ज्यादा बड़े धोखे में आते हैं, उनका हाल बलम बिन बाहुरा जैसा कर देता है कि तुम तो बड़ी चीज हो, तुम्हारी तो दुआएं कबूल होती हैं, और तुम्हारी बात तो इतने लोग सुनते हैं, और तुम्हारे मामलात तो ऐसे हैं कि दुनिया में तुम्हारी बड़ी इज्जत है। और उसको रब की बात की तरफ तवज्जो नहीं करने दे, उसका दिल रब की बात से नहीं पिघलता। जितना कोई वसवसे कबूल करता जाता है ना, उसका दिल पत्थर होता चला जाता है। और आप जानते हैं पत्थर तो फिर ऐसे भी होते हैं जिनसे पानी निकल आता है, और पत्थर तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और इंसान का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है कि वो हकीकत को कबूल नहीं करता। वो जैसे किसी ने कहा, पंजाबी अशार है, कौड़े खूब मिठे ना हुंदे, पावे सह मणा गुड़ पाइए हो। जितना मर्जी इल्म सिखा लो, कौड़े खूब मिठे ना हुंदे, पावे सह मणा गुड़ पाइए हो। ते तुम्हें कदी तरबूज ना हुंदे, पावे तोड़ मक्के ले जाइए हो। ते सप्पां दे पुत्तर मीत ना बनदे, पावे चूलियां दूध पिलाइए हो। यानी वो जो अंदर की सख्ती है ना, दिल सख्त हो गया ना, तो जब तक इंसान का अंदर नहीं बदलता ना, उसकी सोच नहीं बदलती, शैतान भी तो उसी पे वार करता है ना। तो वो जब इंसान का जहन बदल देता है ना, प्रोग्रामिंग बदल जाती है, तो चाहे उसके पास कितना ही इल्म हो, उसका इल्म की मजलिसों में दिल ही नहीं लगता, वो नसीहत कबूल ही नहीं कर सकता। इसलिए इल्म हासिल करने वालों को और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत, और ज्यादा अल्लाह ताला की मदद मांगने की जरूरत।
कितने ही लोग हैं जो इल्म हासिल कर लेते हैं और जब कभी उन इल्म की मजलिस में बैठने का मौका मिले तो उस मजलिस से कोई फायदा नहीं उठा पाते। हर शख्स को जायजा लेना चाहिए, मुझे भी, आपको भी। कब कब वार होता है, वार कितना कारी है, कैसे हो सकता है कि वो वार करे और बंदा बच जाए। नसीहत कबूल करने वाला अमन में आ जाता है। रासिख इल्म। आप देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास इब्लीस आया और कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हारी तो इतनी नमाजें हैं, तुम इतने नेक हो, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो फहम दिया था, उन्होंने सोचा नबियों से तो नमाज माफ नहीं हुई, तो अब्दुल कादिर की क्या औकात है। इब्लीस ने अगला वार और खतरनाक किया, कहने लगा, अब्दुल कादिर को मैं तुम्हारे इल्म में बचा लिया। उन्होंने शैतान को पहचान लिया था, कहने लगे, मुझे मेरे रब ने बचाया है। रब बचाने वाला किसी को उसका इल्म भी नहीं बचाता। अल्लाह ताला चाहे तो इल्म इंसान के काम आता है, वरना इल्म तो सबसे बड़ा तागूत बन जाता है। इल्म के बाद इंसान का दिल जितना सख्त होता है, उतना इल्म के बगैर सख्त नहीं होता। इल्म वालों को जान लेना चाहिए, वो जब फोकस होके सुनते नहीं, इल्मी मजालिस में नहीं बैठते, जब नसीहत कबूल नहीं करते, जब मनमानियां करते हैं, तो दिल सख्त होता चला जाता है, बैक गियर लग जाता है। अल्लाह ताला से तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दिल की सख्ती को दूर करने के लिए दुआ करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी से जंग लग जाता है। तो सहाबे कराम ने पूछा कि दिलों के जंग को दूर करने के लिए हम क्या करें? तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद करें, यानी आखिरत को कसरत से याद करें और कुरान की कसरत से तिलावत करें। तो दो चीजें बहुत बड़ी मुआविन है, तिलावत और मौत की याद। मौत की याद आपको हमेशा सख्ती से बचाती है। पत्थर टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन रेली ऐसे मकाम भी आते हैं जहां मौत को याद करने वाले, जहां मौतें हर वक्त सामने हो, उनके दिल और ज्यादा सख्त हो जाते। एक दफा मुझे किसी खातून ने बताया कि आपको पता है कि ये टोने टूट के सभी करते हैं, लेकिन कब्रिस्तानों वाले भी करते हैं। मैंने कहा, अच्छा वो क्या टोने टूट के करते हैं और क्यों? कहते हैं कि वो कब्रें खोदते हैं, उनकी रोजी कब्र खोदना है, तो जब अमवात कम हो जाती हैं तो कब्रें कम खोदी जाती हैं। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अपनी चारपाइयां उल्टी खड़ी कर देते हैं कि ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो, ताकि हम ज्यादा कब्रें खोदें और ज्यादा कमाई करें। अब सोचिए, कब्रों के अंदर रहने वालों के दिल भी सख्त हो जाते हैं। कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, कुरान का याद करना कितना ज्यादा जरूरी है। कुरान दिलों को नरम करता है। कुरान जिंदगियों में वो तब्दीली लेके आता है जो तब्दीली कोई दूसरी चीज लेकर नहीं आ सकती। आप जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, लेकिन जिक्र से ये पता तो नहीं चलता किसी ऐसे इंसान को जिसने इल्म हासिल ना किया हो कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह ताला का फर्मा बरदार कैसे बनना है। कुरान की तिलावत, खूबसूरत अंदाज में तिलावत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, वो हमने से नहीं है जो कुरान को खूबसूरत अंदाज में तिलावत नहीं करता। आज हमारी सोसाइटी की ये सूरत हाल है, तिलावत कुरान को कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। कितने कम घर हैं
جہاں سے تلاوت کی خوبصورت آواز بلند ہوتی ہے، اب تو فجر کی تلاوت آلموسٹ سوسائٹی کا ختم ہو گئی. لوگ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. لوگ قرآن مجید کو حفظ کرنا اپنی ضرورت خیال نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہیں ہے وہ اجڑے دیار کی طرح ہے. اپنے دلوں کو اجڑے دیار مت بنائیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں. تلاوت قرآن کا بھی ایک عمل ہے. جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں، جب آپ کوئی چیز بار بار دہراتے ہیں اور استاد کی نگرانی میں اس کو سناتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ جب ترتیب کے ساتھ سیکھتے ہیں تو آپ کا دل لگ جاتا ہے. جیسے لوگ گانے گنگناتے ہیں نا، اور انسان جمالیاتی حص رکھتا ہے، اسی طرح سے کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا بتایا. اتنا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کو گنگنانے کا، لیکن ریاضت تو کرنی پڑتی ہے. گانے والے بھی ریاضت کرتے ہیں اور قرآن کے لیے بھی ریاضت کرتے ہیں. اس ریاضت کے نتیجے میں کس قدر زندگی کی ترتیب ہی بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں، آپ لوگ بھی بہت ساری گیمز کرتے ہوں گے. ایک فرد ایک بات کرتا ہے، دوسرا آگے جواب دیتا ہے. گیمز کے بہت سارے طریقے، کچھ انٹلیکچوئل گیمز ہوتی ہیں، کچھ وقت کو ضائع کرنے والی. تو جب لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں دل لگاتے ہیں، کس طرح خوبصورت انداز میں ایک فرد ایک حصہ پڑھتا ہے تو دوسرا فرد آگے، پھر اور آگے. تو ہم ذرا دیکھتے ہیں حافظات اس وقت جو لوگ حفظ کر رہے ہیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. شاید تھوڑی دیر کے لیے قرآن حکیم کی خوبصورتیوں سے نفع اٹھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم
ربكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. نور على مر الزمان تعلق وأضاع لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن صالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تعلق وأضاع لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعلم منهل عندي من مورد لمن اتقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا به أنت النجوم تعلق وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلق وتلاه في جمع الدجى متدبرا والدمع من بين الجفور تلقرق. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مصدقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد كما الزكاة. يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نضيع تناهرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وتقي بوعد الله أن يتحقق. يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق. جزاکم اللہ خیر. سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جس کشمکش کا آغاز ہوا وہ آج بھی جاری ہے. اس کشمکش کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ انسان اور شیطان کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ انسان کے ضمیر اور اس کے دل و دماغ کے میدانوں میں لڑی جا رہی ہے. پختہ ارادے اور سچا علم رکھنے والے افراد اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے. دوسری صورت یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا. سجدے کے حکم سے کشمکش کا آغاز ہوا. حق کی دعوت دینے والا بھی ایک آدم ہوتا ہے جس کے سامنے انسانوں نے جھکنا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اپنے تکبر یا حسد کی وجہ سے نہ جھکیں تو اسی طرح ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اور کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے. انکار پھر صرف انکار نہیں رہتا, مخالفت, رکاوٹ اور رکاوٹیں انتقام میں بدل جاتی ہیں, پھر ہجرتیں ہوتی ہیں, پھر جہاد ہوتا ہے
آج بھی یہ کشمکش جاری ہے کہ آپ جانتے ہیں ہجرتوں کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں اپنے لیے جگہ تنگ پاتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت ہوئی، ہجری کیلنڈر اسی بڑے عمل کی یادگار ہے، اسی کی یاد کے طور پر ہجرت سے اس کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا؟ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے انسانوں کو کہ انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان بھول جاتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن انسان کا رویہ عمومی طور پر معذرت خواہانہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا؟ اعتراف کا، غلطی کا اعتراف کر کے توبہ ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر اگر کوئی عذر پیش کرے تو کبھی غلطی درست نہیں ہو سکتی، وہ غلطی اندر کی اندر رہ جاتی، کینسر کی طرح بن جاتی۔ تو غلطی کرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، توبہ کی، اور رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں سیکھا اور یاد کر لیا۔ یہ کلمات انہیں الہام کیے گئے تھے، یعنی یوں انہوں نے نہیں سیکھا تھا جیسے ہم سیکھتے ہیں، یاد کر کے، پڑھ کے، سن کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیے تھے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ، رحم فرمایا۔ حقیقت یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر ڈٹے رہنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ ہماری سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، کہ ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اپنے گناہ پر شرمسار بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہ سمجھتے کہ یہ گناہ کرنا تو شاید میرا حق تھا اور اللہ تعالیٰ کا تو کام ہی معاف کرنا ہے، وہ معاف کرتا چلا جائے۔ اس رویے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر رحم نہیں کرتا، کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ توبہ کیا ہے؟ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی پہ سب سے پہلے شرمندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ جو نادم نہیں ہوتا وہ توبہ کیسے کرے گا؟ جو اپنے گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے وہ ندامت تک کیسے آئے گا؟ جو نادم ہوتا ہے وہ نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹنا، فرمان برداری کا رویہ اپنانا، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت سے متوجہ ہو جائے۔
तौबा में 3 बातें जरूरी हैं। एक तो जो गुनाह हो गया है उस पर सच्चे दिल से नदामत, दूसरे तौबा के वक्त दिल में ये ठान लेना अब कभी ये काम नहीं करना, तीसरे तौबा के बाद दिल में गुनाह से नफरत। अगर कोई गुनाह से नफरत नहीं करता, हमारी सोसाइटी में तो लोग कहते हैं कि बुराई में बड़ी अट्रैक्शन है, बदरू के लिए तो बहुत अट्रैक्शन है, शहादतमंद इंसान के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, नेक इंसान के लिए तो बुराई एक पहाड़ की तरह है जो उस पहाड़ के नीचे दब जाने से डरता है। इन्नहु वत्तव्वाबु, यकीनन वही बेहद तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला तव्वाब है, वो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। अपने बंदों की तरफ रुजू करने की 2 किस्में हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला बंदे को तौबा की तौफीक दे देता है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। फिर जब तौबा की तमाम शराइत पूरी हो जाती हैं तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है। रियली इंसान शर्मसार भी नहीं हो सकता, तौबा भी नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ताला से तौबा की तौफीक मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा की कबूलियत के लिए दुआ करनी चाहिए। हकीकत ये कि बंदा समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह लेकर आए तो अल्लाह ताला मुआफ कर देता अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। और रहीम निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों के हक में मुसलसल रहमत करने वाला है। इंसान मुसलसल गलतियां करता है और अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुसलसल मुआफ फरमाता है। रब्बुल इज्जत का फरमान है, अलम यअलमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला बिलाशुबा अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात कबूल करता है, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला है। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 104 है। और सूरत निसा की आयत नंबर 110 में फरमाया, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। और जो शख्स कोई बुराई करे, अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश की दरखास्त करे, वो अल्लाह ताला को बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला पाएगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सबक मिलता है, कई असबाब मिलते हैं। एक तो ये कि इंसान मना किए हुए फल को खाते ही यानी गुनाह करते ही अल्लाह की मदद और जन्नत के हक से महरूम हो जाता है, फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। इंसान दुआएं करता है, वो कहता है मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, गुनाह की वजह से, फिर जन्नत का हक भी चला जाता है। अल्लाह ताला ने कल सैयद आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने से मना किया था, आज भी वही सूरत हाल है। जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है उनसे बाज आना है इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह कि नाफरमानियों पर तौबा करने से जन्नत के हक से महरूमी की तलाफी हो सकती है। तौबा कर लें तो अल्लाह ताला वो हक वापस कर देते हैं। रब की तरफ लौटने का रास्ता खुला है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर कसरत से तौबा करनी है इंशाअल्लाह। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के बारे में गलत अकीदा भी है। एक मौजू रिवायत के मुताबिक घड़ी हुई रिवायत है। एक बार ऐसा हुआ कि फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान वहाँ कंटिन्यूसली एक तालीम का सिलसिला जारी था अल्हम्दुलिल्लाह उनके सेनेट हॉल में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट है जो रिसर्च कर रहा था, शायद पीएचडी स्टूडेंट था, उसने कहा कि यही रिवायत जो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये रिवायत मैंने एक बड़ी किताब में लिखी देखी। मैंने कहा आपके पास सबूत है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर आप सबूत दीजिए। कहने लगा इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, मैं कल आपको बताऊंगा। मैं कल वो किताब लाऊंगा या मैं उसकी कोई यानी कॉपी ले आऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अगले दिन वो आए, मैंने कहा किताब का नाम क्या है? उन्होंने कहा मौज़ूआत कबीर।
میں نے کہا آپ کو پتا ہے موضوعات کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا سب سے بڑی گھڑی ہوئی جھوٹی روایات. تو چاہے کوئی پی ایچ ڈی بھی کر لے کسی سبجیکٹ میں, بہت زیادہ تحقیقات کر لے, لیکن جو فیلڈ ہے اگر اس کا علم نہیں ہے تو وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا. تو گھڑی ہوئی روایت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی. یہ روایت گھڑی ہوئی ہے, قرآن حکیم کے مخالف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے بغیر وسیلے کے دعا کیا کرتے, براہ راست دعا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگنے کا براہ راست طریقہ سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے ہی دعا مانگنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. آیت نمبر 38 ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سیدنا آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت حاصل کرنے کی تدبیر بتائی گئی. شیطان نے بہکایا تھا. جنت سے نکالتے وقت اللہ پاک نے شیطان سے چوکنا کر دیا کہ دیکھو شیطان تو تمہارا دشمن ہے اور دشمنی کا مقابلہ تم کر سکتے ہو. تمہارے پاس رسول بھیجے جائیں گے, کتابیں بھیجی جائیں گی, انبیاء کے ہاتھ پر معجزے ظاہر کیے جائیں گے, دلائل سے سیدھا راستہ کھول کھول کر بتایا جائے گا, پھر آپ اسے اختیار کرو گے تو جنت مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نبی نہیں بھیجے, کیا کتابیں نہیں بھیجی؟ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آ جائے, آپ کی زندگی کتاب کے مطابق ہو جائے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. زمین میں اتارے جانے کا دوبارہ ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوا جائے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ کو معاف کر دیا مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رکھا. اور سب کے اخراج سے مراد یہاں سیدنا آدم علیہ السلام, سیدہ حوا اور ابلیس ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا گناہ کے کفارے کے طور پر نہیں تھا بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تذکرہ تو فرشتوں کے سامنے بھی ہوا تھا کہ میں ایک زمین میں ایک جانشین بنانے والا. یہ اللہ کی قضاء کے تحت تھا, اللہ کی تقدیر کے تحت تھا. اس سے عیسائیوں کے اعتقاد کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا گناہ نسل انسانی میں منتقل ہوا, نسل در نسل, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس گناہ کے کفارے کے لیے سولی چڑھ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا. تو دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا. الحمدللہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, یعنی اگر تمہارے پاس کتاب آئے, رسول آئے, کسی دور میں بھی میری طرف سے رہنمائی پہنچے تو جو کوئی میرے تقرب کی طرف رہنمائی کرے, یعنی لوگوں کو توجہ دلائے, لوگوں کو میرے قریب کرنے کی کوشش کرے, میری رضا کے قریب کر دے, میرے رسولوں, میری کتابوں پر ایمان لے آئے, میرے اوامر و نواہی کی پابندی کرے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی,
अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है 24 नंबर पर। ये दो चीजें जो इंसान को गुमराह होने से, जहन्नुम की आग से और हर फितने से बचा सकती हैं। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए ना कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। हिदायत पाने वाले अल्लाह ताला की हिदायत से, अल्लाह ताला के माँ सिवा किसी से नहीं डरते, जो छूट जाए उस पर गम नहीं करते। यहाँ खौफ का ताल्लुक आखिरत से है कि आखिरत में ईमान वालों को, अल्लाह की हिदायत पर चलने वालों को खौफ नहीं होगा, गम नहीं करेंगे, उन्हें दुनिया छोड़ने का कोई गम नहीं होगा। दुनिया से जाते हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है, उसको बहुत तकलीफ होती है जब वो अपनों को छोड़कर जाता है, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को छोड़ता है। और दुनिया में जो कुछ उसके पास होता है सब कुछ ही तो छोड़ के जाना होता है। अपनी बिलोंगिंग्स, जितनी चीजें उसके पास होती हैं, घर के अंदर की चीजें, किस कदर मुश्किल वक्त होता है इंसान के, लेकिन उनके लिए मुश्किल नहीं जो जिंदगी की और मौत की हकीकत को समझ जाते हैं। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया वही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला की आयात का इनकार और तकज़ीब का अंजाम कितना बुरा है। हमेशा के लिए जहन्नुम की आग जिसमें वो जलते रहेंगे। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया। जिस शख्स ने अल्लाह की हिदायत की पैरवी नहीं की, लेकिन हिदायत का आ जाना, उसकी जुबान समझ लेना, उसका मफहूम समझ लेना काफी नहीं है, पैरवी करना जरूरी है, फुटस्टेप्स में चलना जरूरी है, एक एक चीज को जिंदगी में लाना। अपनी जिंदगी का जायजा तो लें, कहाँ कहाँ हिदायत की कितनी पैरवी है। एक सच की बात देखेंगे, जिंदगी में सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। जिंदगी कहाँ कहाँ रब के हुक्म के खिलाफ है, या कहाँ पूरे तौर पर कबूल नहीं किया किसी चीज को। तो जो इनकार करे, जो झुटलाए, रब्बुल आलमीन का ऐलान है उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग आग वाले हैं, जहन्नुम उनके साथ लाजिम व मलजूम रहेगी। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, जहन्नुम से कभी नहीं निकलेंगे, कभी अजाब कम नहीं होगा, न उन्हें कोई मदद पहुंचेगी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे, मौत को लाया जाएगा, उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान रख कर ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ऐ जन्नत वालों, तुम्हें अब मौत नहीं आएगी, अरे दोज़ख वालों, तुम्हें भी अब मौत नहीं आएगी। इस बात से जन्नती और ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नमी और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। बुखारी की 6548 नंबर रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू कंप्लीट हुआ।